بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. چلیے، کل ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ غائب، حاضر، متکلم. ٹھیک، ایک بار میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. یہاں سے عدد، عدد مینس نمبرس. اس میں آپ نے پڑھا تھا واحد، ایک کو واحد کہتے ہیں مینس سنگولر. تسنیہ، دو کو تسنیہ کہتے ہیں مینس ڈوئل. اور دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں مینس پلیورل. عدد کیا ہے؟ کسی ناؤن یا کسی اسم کے تعلق سے یہ جاننا کہ وہ ایک ہے، دو ہے یا دو سے زائد ہیں، اس کو عدد کہتے ہیں. تو آپ نے کل جواب بھی دیا تھا کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف عدد؟ تو دیر آر 3 ٹائپس آف عدد. اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا سمجھ میں جن. آ رہا میوٹ کریے پلیز، میوٹ کریے پلیز. بہت غلط بات ایسے مائک آن کر کے کلاس میں انٹر ہونا. اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا جنس. جنس مینس جینڈر. مذکر آدمی کو کہتے ہیں یعنی میل. مؤنث عورت کو کہتے ہیں مینس فیمیل. تو جنس کیا ہے؟ کسی ناؤن یا کسی اسم کے تعلق سے یہ جاننا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ میسکولن ہے یا فیملین ہے، وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے، یا وہ آدمی ہے یا وہ عورت ہے. وہی جنس ہے ہمارا. ٹھیک. اس کے بعد غائب پڑھا تھا. غائب مینس تھرڈ پرسن. تو غائب کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. اس کے بعد حاضر تھا سیکنڈ پرسن. وہ شخص جس سے بات کی جا رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حاضر کہتے ہیں. یا عربی میں اسے مخاطب بھی کہتے ہیں. میم خا الف تا با، مخاطب، با تا والا تا. اس کے بعد آپ نے فرسٹ پرسن پڑھا تھا متکلم یعنی بات کرنے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مخاطب کہتے ہیں. ٹھیک. اردو زبان میں غائب کے لیے وہ، اس، حاضر کے لیے تو، تم، آپ کا یوز ہوتا ہے. اور متکلم کے لیے کیا یوز کریں گے آپ؟ میں اور ہم. میں سنگولر یعنی صرف اپنے لیے، اور ہم پلورل کے لیے. اب آج ہم پڑھیں گے زمانہ. تو زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کو زمانہ کہتے ہیں. زمانہ مینس ٹینس. تو زمانے کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے زمانے ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل. جیسے آپ انگلش میں پڑھتی ہیں پاسٹ، تو پاسٹ کیا ہو گیا ہمارا؟ یہ ماضی. اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں پریزنٹ، تو یہ ہمارا ہو گیا حال. اس کے بعد مستقبل یعنی فیوچر. تو وہاں بھی آپ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر پڑھتے ہیں. یہاں بھی آپ کیا پڑھیں گے؟ ماضی، حال، مستقبل. یہ 3 زمانے ہیں. تو زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. اور زمانہ کہتے کسے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں زمانہ. ٹھیک. اب ہمارا آ رہا ہے لفظ. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے آپ لوگ. لفظ. لفظ، اب لفظ کسے کہتے ہیں یہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. جو بھی بات ہم بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ لفظی تو ہے. اور اس کی پلورل فارم کیا ہوتی ہے؟
अल्फाज। ठीक है, कैसे लिखेंगे? कुछ लोगों ने कहा उर्दू लिखने में परेशानी है, तो कोई बात नहीं। तो उर्दू मुझे भी लिखना नहीं आती है। ठीक, तो लफ्ज क्या है इनकी? लफ्ज, प्लीज, ये कौन बात कर रहा है? हमने को होस्ट बनाए हैं तहसीन, ऐमन, अफशा। जी तो मैम। लफ्ज, लफ्ज क्या है? सिंगुलर है, और उसकी प्लूरल क्या है? अल्फाज है। ठीक, तो लफ्ज किसे कहते हैं? जो भी बात बोलते हैं लफ्ज ही तो हैं, और उन्हीं से अल्फाज बनते हैं। अब ये बनते कैसे हैं लफ्ज? हुरूफ और हरकत के मिलने से। इस अभी पहले आपको क्या पढ़ाया गया? 2 दिन से क्लासेस हो रही हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? हुरूफ पढ़े थे ना, हुरूफुल हिजा पढ़े थे ना, अलिफ बा ता सा। उसके बाद आपने क्या पढ़ी? हरकत। तो अगर एक है तो क्या कहेंगे आप? ये क्या हो गया? हरका कहते हैं ना। अगर आप पूरा लिखेंगे तो जमा के साथ लिखेंगे। वैसे बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? हराका कहते हैं ना। और प्लूरल है तो ये क्या हो जाएगा? हरकत। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि बहुत उर्दू लिखा जाए, आप ऐसे रोमन में भी लिख सकते हैं। तो कैसे बनते हैं हमारे अल्फाज? हुरूफ और हरकत के मिलने से क्या बनता है? लफ्ज बनता है। ठीक, खाली अगर आपको अभी लिख दिया जाए कि आपने एक वर्ड लर्न किया है ना, कलमुन, तो मैं यूं लिख दूं, काफ लाम मीम। अब जो अरबी नहीं जानता है वो इसे क्या पढ़ेगा? अगर कहा जाए पढ़िए तो वो कहेगा ये काफ है, लाम है, मीम है। तो हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनते हैं, खाली हुरूफ से नहीं बन जाएंगे। ये हुरूफ लिखे हैं, अगर किसी से कहा जाए तो वो कहेगा ये काफ है, लाम है, मीम। और अगर इस पे मैंने हरकत डाल दी यूं, तो आप कह देंगी ये कलमुन लिखा हुआ है। तो कैसे बनते हैं लफ्ज? हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बन जाते हैं। अब देखिए, हर कलीमा, अरबी जबान में हर मीनिंगफुल वर्ड को अभी आगे आपको बताया जाएगा कलीमा कहते हैं। कोई भी बात है तो वो क्या है? कलीमा है। लेकिन हर कलीमा लफ्ज होता है। क्या बात कही जा रही? हर कलीमा लफ्ज होता है, लेकिन हर लफ्ज क्या होता है? कलीमा नहीं होता है। हर लफ्ज कलीमा नहीं होता, क्योंकि कलीमे किसके हम बोलते हैं? जो मीनिंगफुल वर्ड होता है। तो वही बात अभी आपको यहाँ बताई जा रही है। लफ्ज, फिर लफ्ज को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मौजू और मुहम्मल। क्या है ये? मौजू, मीम वाव ज़ाद वाव आइन, मौजू और मुहम्मल। तो मौजू और मुहम्मल। उसके बाद में देखिए मुहम्मल क्या है आपका, अभी बताया जाएगा, और मौजू क्या है वो भी बताया जाएगा। सिर्फ आप इसको अभी ऐसे ही, अगर आप नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो उसको लिखिए, मौजू और मुहम्मल। फिर उसके बाद में आपने क्या किया? मुहम्मल यहीं पे ड्रॉप कर दिया। मौजू को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया? मुफरद एंड मुरक्कब। मुरक्कब को यहीं छोड़ दिया, मुफरद को आपने फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऐसे ही अपनी नोटबुक में बना लीजिए। उसके बाद अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपने डिवाइड किया। अब अगली बात क्या आ रही है? लफ्ज। जो बात बोली जाती है इसको क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। जो भी हम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। चाहे हम माउस से बोलें, चाहे हम लिख के बोलें, चाहे हम मैसेज के थ्रू बोलें, किसी भी एंगल से हम जो बोलेंगे वो क्या है? लफ्ज है। तो जो भी बात बोली जाए वो लफ्ज है, चाहे लिख के बोली जाए, चाहे यूं ही बोली जाए। ठीक, उसके बाद अगला क्या आ रहा है? लफ्ज की 2 किस्में हैं। लफ्ज की 2 किस्में हैं। फर्स्ट वन है मुहमल, सेकंड है मौजू। अब मुहम्मल किसे कहते हैं?
बे मानी लफ्ज को, यानी जिसकी कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस हो, उसको क्या कहेंगे? मुहम्मल। और मानीदार लफ्ज को, मीनिंगफुल वर्ड को क्या कहेंगे? मौजू कहेंगे। तो बेमानी लफ्ज को क्या? मुहम्मल है वो। और मानी वाला क्या है? मौजू। अब कैसे मुहम्मल और मौजू? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किताब, उसके साइड में लिखा हुआ है किताब। तो किताब विताब, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे इस मिसाल में? किताब मौजू है और बिताब क्या है? मुहम्मल लफ्ज है। एक के साथ एक जो हम बोलते हैं ना, वही मुहम्मल है, जिसका अ, कोई माना ना हो। ऊपर क्या बताया मैंने? हर कलिमा लफ्ज होता है, लेकिन हर लफ्ज कलिमा नहीं होता है। तो लफ्ज तो विताब भी है ना, जैसे हम कहते हैं चाय वाय, पानी वानी, तो वो भी है, लेकिन वो क्या है? कलिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड होता है कलिमा। तो हर कलिमा लफ्ज होता है, लेकिन हर लफ्ज कलिमा नहीं होता है। तो जो मुहम्मल होगा उसको हम नहीं कहेंगे। तो क्या बात बताई गई आपको? मुहम्मल जो आप एक के साथ एक बोलते हैं वही मुहम्मल है। किसी का नाम लेंगे, फातिमा वातिमा, है ना, जैद वैद, तो इस तरीके से हम एक के साथ एक जो लगाते हैं वो मुकम्मल है। चाय वाय, पानी वानी, इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल दो तीन लिख लीजिए, ताकि आपको मुकम्मल समझने में आसानी हो कि जो हम एक के साथ एक लगा के बोलते हैं वो मुकम्मल है। उसके बाद अगली बात क्या बताई जा रही है? मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। अब यहाँ पे मुकम्मल को क्या आपने, विताब है, चाय के साथ वाय है, तो मुकम्मल तो आगे चलेगा नहीं, क्योंकि मुकम्मल से तो हम लोग एक दूसरे से बात करते नहीं है। तो यहाँ हम क्या सीखने आए हैं? अरबिक सीखने आए हैं ना। और कुरान की जो मीनिंग हमें समझना है, तो कुरान करीम का हर वर्ड क्या है? मीनिंगफुल है। तो मुकम्मल को हम यही ड्रॉप कर देंगे, देखिए इसकी कोई किस्म नहीं है, यहीं पे छोड़ देते हैं। और मौजू की किस्म आगे बनी है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मौजू की दो किस्में हैं। फर्स्ट वन क्या है? मुफरद। और दूसरा क्या है? मुरक्कब। तो मुफरद किसे कहते हैं? एक को कहते हैं जो सिंगल हो, अकेला हो। और मुरक्कब किसको कहते हैं? जो ज्यादा हो। ठीक। अब देखिए क्या बात बताई जा रही है आगे। मुफरद इस लफ्ज को कहते हैं जो अकेला हो, जैसे वलदुन, लड़का, कलमुन, कलम। और मुफरद का दूसरा नेम क्या है? कलीमा है। तो मुफरद का ही दूसरा नेम क्या है? कलीमा है। मुफरद किसे कहते हैं? इस लफ्ज को कहते हैं जो अकेला हो। जैसे वलदुन अकेला है ना, तो हम क्या कहेंगे? ये मुफरद है, अकेला है। कलमुन अकेला है। आपने लर्न किया है ना, वलदुन मीन्स लड़का, या कलमुन मीन्स एक कलम, कलमानी दो कलम, अकलामुन बहुत सारे। तो यहाँ पे कलमुन लिखा हुआ है, कलमानी नहीं है, अकलामन नहीं है। तो ये क्या है? मुफरद है, मतलब अकेला है। अब मुफरद का ही दूसरा नेम क्या है? कलीमा है। ठीक। अब अगली बात क्या बताई जा रही है? मुरक्कब। मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से जायद अल्फाज के मजमुए को। अब मजमुआ क्या है? जमा, यजमाउ मीन्स होता है ना, जमा करना, उसी से मजमुआ, यानी जिसे जमा किया जाए। तो दो या दो से जायद अल्फाज के मजमुए को क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। ठीक। तो अगली बात क्या बताई जा रही है? मुरक्कब मुकम्मल जुमला भी हो सकता है और नामुकम्मल जुमला भी हो सकता है। ये अभी आपको घबराने की कोई बात नहीं, ये आपको सब ऐसे ही बताया जा रहा है, टर्म्स बताई जा रही है। चैप्टर सब अभी बहुत आगे आएंगे।
तब वहां आप समझेंगे। ठीक है, कि अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो कुछ भी आपको समझने की जरूरत भी नहीं। सिर्फ आपको क्या क्या आगे नेम यूज होने वाले हैं वो सारी चीजें आपको बस याद रखना है। तो क्या बात बताई गई, मुरक्कब क्या है? दो या दो से जायद अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। और मुरक्कब क्या बताया जा रहा है? मुकम्मल यानी कंप्लीट जुमला भी हो सकता है और ना मुकम्मल जुमला भी हो सकता है, यानी इनकम्प्लीट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है बाबुन कबीरुन। बाबुन कहते हैं दरवाजे को, कबीर कहते हैं बड़े को। कबीर आप सब जानते होंगे ना, हम लोग बोलते हैं ना गुनाहे कबीरा और सगीरा। तो कबीरा मतलब बहुत बड़ा, बड़े वाले जो गुनाह होते हैं। तो बाबुन कबीरुन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बड़ा दरवाजा। तो अगर मैंने कहा बाबुन कबीरुन, बड़ा दरवाजा, तो ये नामुकम्मल जुमला है। क्यों नामुकम्मल है? मैंने कहा बड़ा दरवाजा, थोड़ी देर के बाद हम बोल दें, अगर आपने कहा है, मैं कह दूं नहीं, तो सिर्फ क्या है, ये इनकम्प्लीट है। बाबुन कबीरुन, बड़ा दरवाजा। और यहाँ पे क्या है? अल बाबू कबीरुन, दरवाजा बड़ा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि दरवाजा बड़ा नहीं है थोड़ी देर के बाद। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। तो दो चीज को हम जोड़ेंगे, और जो दो चीज होगी तो वो उसमें आपस में कनेक्शन भी होना चाहिए, कि बड़ा दरवाजा छोटा दरवाजा। अब मतलब दरवाजे के अगला जो इसम आएगा तो उसकी उससे मुनासिबत भी होनी चाहिए। कि हम जो सेंटेंस बनाएंगे तो ये नहीं कि हम एक सेंटेंस मैंने ले लिया कि यहाँ पे बैठी हूँ, ये हो गया मेरा, जैसे हुजरा कहते हैं, और दूसरा सेंटेंस ले लिया मैंने कि खाना। तो इस तरीके के, कुछ इस तरीके के कि उसमें कनेक्शन भी होने चाहिए। तो क्या समझ में आया आप लोगों को कि लफ्ज लिया मैंने, लफ्ज किसे कहते हैं और लफ्ज बनते कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चली कि हुरूफ और हरकत के मिलने से कैसे बनते हैं, लफ्ज बनते हैं। और जो बात बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। फिर लफ्ज की दो किस्में हैं, मुहम्मल और मौजू। बताइए मुहम्मल किसे कहते हैं, कौन बताएगा? मुहम्मल बेमानी जिसमें लफ्ज को मुहम्मल बोला जाता है, किताब बिताब, बेमानी लफ्ज। वेरी गुड। बेमानी लफ्ज को मुहम्मल कहते हैं। और क्या समझ में आया आप लोगों को? मुरक्कब किसे कहते हैं? दो से ज्यादा दो हर्फों से वाले ज्यादा, दो से ज्यादा जुमले को।